Hi everyone and welcome back to this channel Kodot. If you don't know me, then I am Ayantika, a fourth year biomedical student at Aiza Barhampur. And in this video, I am going to talk about everything that you're going to do just 7 days before your exam. Because we all know just a week before the exam is a week of a lot of anxieties, panicking and so many blah 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 kind of thing. And because of which, a week can change everything. So many things a week before the exam can change. So in this video, I'm going to talk about everything that you should do in these 7 days and things that you should avoid. Okay? So yeah, the first thing that I will be talking about is stop learning any of the new chapters. Even if you are thinking कि हाँ भाई ये chapter तो एक छोटा सा chapter है कर लूँगी and let's do it. No, it's not the time to do a new chapter right now. No way. So do not start any of the new chapter. अगर ऐसा कोई chapter है जो तुमने बिल्कुल भी कभी नहीं किए हो तो do not touch that chapter right now because this is not the time when you should start new chapters. And at this point of time, revision is much more important than any other thing. Rather than starting any new chapter, you revise your earlier chapters. जितना भी अच्छा तुम्हारा preparation है ना, even if you are a topper, please do not start a new chapter. You revise whatever you have already studied. देखो 2 साल में या फिर if you're a dropper of 1 year or 2 year, then you at the max at 4 years, and if you're a fresher then you had 2 years. तो 2 साल में या फिर 4 साल में तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है. ठीक है, अगर कोई नया चैप्टर है, डू नॉट टच इट, स्किप दैट चैप्टर, बाहर नहीं जाए, देखा जाएगा बाद में, वो छोड़ दो, नहीं देखा जाएगा, छोड़ दो. Revision is much more important and you revise those chapters that you have already done. But देखो, every chapters that you have studied, you revise those. But I know that 7 days में you can revise all chapters. But still then I will say तुम ये 7 days में ना उसी जगह को ज़्यादा revise करो जो तुम भूल जा रहे हो. Not everything you are forgetting, right? थोड़ा कुछ जगह तो होगा जो तुम ज़्यादा भूल जा रहे हो. You do not remember. You have to, you are taking time to recall those. ठीक है, उसको पहले revise करो, बाकी बाद में देखा जाएगा. ठीक है, सारा चीज़ों को रिवाइज भी नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि see 1 month before also I made a video where I said कि you need to revise the chapter which you have already done. Then also I asked you not to start a new chapter. और फिर 7 दिन पहले तो मैं बोलूँगा ही, मतलब जो भी हो जाए नया चैप्टर नहीं करना है. जो भी किए वो उसको रिवाइज करो. उसमें से भी जो जगह है विच यू थिंक दैट हाँ ये याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इट्स नॉट लाइक कि तुरंत क्वेश्चन देख के मेरे को याद आ जा रहा है, ऐसा नहीं है, तो फिर उसको रिवाइज करो. दैट इज द थिंग यू नीड टू रिवाइज मोस्ट. एक थिंग इज मॉक टेस्ट के बारे में मैं बहुत बार बोल रही हूँ. ठीक है, दैट यू नीड टू गिव योर मॉक टेस्ट एंड सम हियर सम देयर एंड व्हाटएवर इट इज. जहाँ से भी दिए हो, जहाँ से भी दे रहे हो, फुल मॉक्स दे हो. एटलीस्ट इन दिस 7 days ना 3 फुल मॉक्स दे दो, जो कि तुम्हारा पूरा IIT और नेस्ट का सिलेबस रहेगा, और जहाँ पे पूरा तुम्हें एक CBT मोड पे पूरा क्वेश्चन मिलेगा. ऐसा कहीं जहाँ पे भी मिल रहा है, बी इट शाइस्टा और एनी अदर प्लेटफॉर्म यू नो, जहाँ से कि ये मिल रहे हैं तुम वो ले लो और 3 मॉक्स जरूर दे. ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तुम्हारा नहीं जाएगा, 3 मॉक्स दे दो. जहाँ भी वो मिल रहे हैं तुम बस 3 मॉक्स CBT मोड में, अगर कोई फ्री मिल रहा है तो फिर वहाँ से ले लो. फिर लेके 3 मॉक्स पूरा CBT मोड पे पूरा एनवायरनमेंट बना के कि हाँ आज ही मेरा IT है और ये जो मैं सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन, इट इज माई क्वेश्चन ऑफ IT and I am giving IT. तो this 3 times will be totally like तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जैसे कि you will be familiar with the environment when you will be going to give your IT. ठीक है, पूरा ऐसे एक अच्छा सा माहौल बना के एग्जाम देना है. ठीक है, क्योंकि देखो जो भी हो जाए, हाउ मच गुड स्टूडेंट यू आर दैट डजंट मैटर. एग्जाम के टाइम पे ना सबको पैनिक होता है. कोई मॉन्स्टर है कि IT देने बैठेंगे ना, उसको भी होगा पैनिक. ठीक है, तुम तो एक छोटा सा इंसान हो, तुम्हें तो होगा ही. 3 टाइम प्रैक्टिस दिस. पूरा एकदम खाली रूम पे बैठना, बोलते ना कि आसपास लोग हैं बट स्टूडेंट्स है, फैमिली को बोलना कि ये बस 3 घंटे मेरे को दे दो अकेला रूम में और CBT मोड पे दे दो. तुम्हारे पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर फोन जो भी है तुम बस अच्छे से दे दो. जस्ट मेक एन एनवायरनमेंट एक्जैक्टली लाइक योर आइडियानेस. ठीक है, और जो मैं मॉक्स का बोल रही थी, मॉक्स तुम दे रहे हो, ठीक है, उसमें से देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी अनेबल टू अटेम्प्ट, व्हिच यू विल गेट रॉन्ग, एंड मे बी समथिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट और एनीथिंग. So after you are giving the mock, you need to analyze the whole. But without analyzing, giving mocks and without analyzing is nothing. बिल्कुल कुछ नहीं है वो, बस ऐसे mocks देके खत्म, ऐसा नहीं होता है. Mocks देना मतलब you have to analyze the paper. It is a part of giving the mock. You analyze the paper, you find it out why you are getting why you convert into it incorrect. Why was you unable to attempt that question? Was it a time management problem? Was it a silly mistake? Was it a concept understanding problem? Or is it because any other thing? You analyze the paper, तभी तो तुमको याद मतलब समझ आएगा ना कि क्यों ये गलती हो रही है मुझसे, and then only you will be able to correct it. Without analyzing it is nothing. It is really nothing. Give them up and analyze the paper. This is your second thing that you need to do. Third thing is
PYQs करने को मैंने बोल दिए थे 1 महीने पहले। आई मेड अ वीडियो वेयर आई सेड कि तुम्हें PYQs करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। अभी ये 7 दिन में ना PYQs को रिविजन करना है, रटना नहीं। कंसेप्ट जो तुमने पढ़ा था, मैंने बोला था ना कि अगर यू आर फॉलोइंग माई स्ट्रेटेजी देन यू नो कि मैंने PYQs को बोला था कंप्लीट करने के लिए। अगर फॉर नॉन मैथ एंड नॉन बायोलॉजिकल आई आल्सो सेड दैट व्हेन यू आर डूइंग द मैथ्स पार्ट और द बायो पार्ट, you solve the question. When you don't understand what it is, you ask your AI or any other people you know, you trust. You make them, you ask them to make you understand the concept, and you understand the concept. So that concepts, the questions, everything, the pattern, everything. This is the time when you should revise the PYQs. बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है, देखा दैट केस कैसे की मैंने सुना है। तो लोगों ने ना PYQs किया तो है, लेकिन रिवाइज नहीं किया है। प्लस में 2 रिविजन के अलावा ना कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। तुम जितना भी पढ़ लो, दैट डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू रिवाइज, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, तुम्हारा अगर PYQ पूरा सॉल्व हो गया, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ दो, अभी नहीं देखना है, नया कंसेप्ट का कोई टाइम अभी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो इफ यू आर टेकिंग दिस एग्जाम सीरियस, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही देना है तो ठीक है, अभी नया कंसेप्ट शुरू कर सकते हो, बट इफ यू आर टेकिंग इट सीरियसली डू नॉट। तुम जितना PYQs उसको ही रिवाइज करो। एंड obviously तुमने जब PYQ किए हो, अब बेसिक कॉमन सेंस यू हैव नो कि when you are solving a PYQ the questions that you have bit more harder, you have marked those questions, redo those questions। मतलब ऐसे क्वेश्चन को देख के खुद को, मतलब you try it by yourself to solve it, redo those questions and revise all the PYQ questions that you have done, and the harder parts you do it again, ठीक है। It's not only revise, you practice it again, ठीक है। This is the thing। Then the next thing is time management strategy for your exam। See, टाइम मैनेजमेंट मैंने पूरा लिख के रखा है कि क्या क्या तुम लोगों को बताना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बाद मतलब बारे में बोलूंगी तो देखो, फर्स्ट थिंग इज पहले डू द इजी क्वेश्चंस, जितना भी इजी क्वेश्चंस है डू इट, ठीक है। एंड डू नॉट गेट अटैच्ड टू अ सिंगल क्वेश्चन। जब मैंने पहली बार नीट दिया था ना, तो मेरे को एक क्वेश्चन देख के लग रहा था कि हाँ मुझे आएगा, आई नो दिस स्टेशन, आई नो दिस, आई जस्ट कांट रिमेंबर, एंड थिंकिंग दैट आई वेस्टेड टाइम। एंड यू बेसिकली नो राइट दैट नीडिंग अ टाइम मैनेजमेंट थी, इट इज नॉट अबाउट लाइक IT में थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट तो रहता है, पर नीट में रियल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो इट इज बेसिकली मोर टाइम मैनेजमेंट के कंपेयर टू दैट दिमाग लगा के सोचना वाला थे, ठीक है। आई वेस्टेड सो मेनी ऑफ माई टाइम थिंकिंग इन माई रनिंग ईयर, ठीक है। तो मतलब 12th देने के बाद जो मैंने देने के लिए गई थी दैट वन, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने बहुत टाइम लगा दिया नॉर्मली बायो फिजिक्स में, बायो में ज्यादा नहीं बट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। हाँ भाई ये कंसेप्ट तो मेरे को खती है, मैंने कल ही पढ़ के आई हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है, तो मैं सोच लेती हूँ, ये सोच 5-10 मिनट एक ही क्वेश्चन से चली गया। भाई सोचो कितना पीछे जा रहे हैं अगर तू, इफ यू डू द सेम मिस्टेक, डू नॉट डू दिस। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो छू तो ना, हाथ में देखा जाएगा। जो इजी क्वेश्चन है, जो तुम्हें अभी आ रहा है, तुरंत देख के याद आ रहा है कि हाँ भाई यही होगा, उसको पहले करो, बाद में देखा जाएगा मतलब जो नहीं हुआ है। जब तुम देखो एक पेपर जब कर रहे हो ना, ये एक पेपर करने के बाद किसी वाले पेपर पे जब जाओगे ना, अगला वाला पेपर पे और एक बार नहीं जाना है, करते ना हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस। पूरा लास्ट में वो जाने के बाद फिर कम टू द फर्स्ट पेज, तब भी देखना है कि क्या क्या नहीं हुआ है। इवन इफ इट इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फिर भी डू नॉट, इट डजंट मैटर, जो भी तुम्हें पहले आ रहा है पहले वो सब कर लो, पहले खत्म करो जितना आ रहा है। देयर विल बी लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस, पहले उसको खत्म करो, फिर हार्ड क्वेश्चंस जो कंसेप्ट्स को मैं पता है लेकिन यू आर टेकिंग टाइम टू रिकॉल, यू आर टेकिंग टाइम टू सॉल्व, उसको बाद में करना है। पहले जो फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स है ना, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। बहुत लोग ने ऐसा करते हैं कि वो हार्ड क्वेश्चन पहले करने को कोशिश करते हैं, हाँ भाई हार्ड क्वेश्चन करना, हार्ड क्वेश्चन तू कर लेती हो, बाद में इजी क्वेश्चन करूंगी। मैं उनका हार्ड क्वेश्चन करते वक्त ही पूरा टाइम निकल जाता है, इजी क्वेश्चन जो आता था वो नहीं कर पाते हैं। दिस इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स हियर, ठीक है। तो तुमने वो नहीं करना है, पहले इजी क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, बाद में हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज योर मेंटल स्टेट बेटर, बिकॉज वी ऑल नो एग्जाम की 7 डेज पहले कितना, मेनली द ड्रॉपर्स, कितना पैनिक होता है, कितना एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, कितना फ्रस्ट्रेटेड लगता है। आई नो वन एडवाइस इज, ट्रस्ट मी, देयर आर स्टूडेंट्स हु स्टे calm before their exams. They beat the students who had more knowledge than the former students but was panicking before their exam. This happened and there are a lot of tools of this thing. तो प्लीज भाई हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि पैनिक मत करो। आई नो इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट बिफोर 7 days ऑफ योर एग्जाम, बट ये 7 दिन पहले अगर तुम खुद को काम नहीं रख पा रहे हो ना, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जो भी चीज तुमको आते से ना वो भी भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गलती हो जाएगा, ठीक है। ये मत करो, ट्राई टू स्टे calm एज मच एज यू कैन। आई टू पैनिक होगा, थोड़ा सा होगा, बहुत होगा, बट ट्राई टू स्टे calm एज मच एज यू कैन। अगर भाई IT नहीं मिल रहे तो सोच लो भाई भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और रखा है जहां यू कैन डू मच बेटर कंपेयर टू दैट, और यू कैन डू आफ्टर कमिंग टू आइजर्स नाइदर IISc और व्हाटएवर रिसर्च इज डू यू वांट टू कम। तो भगवान ने जो भी लिखा है ना तुम्हारे अच्छे के लिए लिखा है।
अगर नहीं मिल रहा है फिर भी मतलब ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. I genuinely wanted a medical college, मुझे नहीं मिला. But I genuinely trust now that coming to ISA, I'm doing far, far, far better and great compared to what I could have done if I went into a medical college. तो तुम्हारे साथ भी यही होगा. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट टू द प्रोसेस. स्टे कम. अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. अगर हो जाए तो कोई क्या है ना. तो स्टे कम. पैनिक करने से कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा. वरना जो है वो भी चले जाएगा. चाहते हो क्या यार? ये तुम नहीं चाहते हो ना, तो ट्राई टू स्पीक कम एज मच एज इट इज पॉसिबल. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ. ठीक है. 7 दिन पहले तुम्हें लगेगा कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब कुछ एक साथ करना है. अभी तो रात आज अब करना है. 3 4 दिन में पूरा मतलब ऐसे बैठ के पढ़ रही हो, ना तो खाना है, ना तो पानी पीना है, ना तो सोना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही पढ़ती जा रही हो. नहीं, इससे तुम्हारा हेल्थ, दिमाग, इवन योर ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग. यू नो, a person that takes sleep at least 5 hours a day can work much more productively than a person who do not sleep at all. The one who is not sleeping is thinking that I'm doing great, but no, by a certain amount of time, 3 से 4 दिन बाद your दिमाग will stop working. Bro, do not take this risk. ठीक है. Sleep at least 4 to 5 hours. ठीक है. And take care of your health. Keep yourself hydrated and have good foods and everything. So make sure that your health is fine. It is not like एग्जाम के दिन तुम्हारा ऐसे कंडीशन हो जाए कि तुम एग्जाम ही देने के लिए जा नहीं पा रहे हो. ऐसा नहीं. So take care of your health. And final day checklist is a day before the exam. You do total light revision. It is not like पूरा पहले से लास्ट तक. देखो, it's a huge syllabus. ठीक है. एकदम बुक्स के पहले का जो चैप्टर्स है वहां से लास्ट तक यू कैन नॉट रिवाइज इन अ सिंगल डे. ठीक है. ऐसे पूरा नहीं हो पाएगा. वो अभी से करो, पर एग्जाम के एक दिन पहले इट्स अ लाइट रिविजन पर ऑल ऑफ. ठीक है. Just do your light revision and keep your admit cards and all the materials that are needed ready, and make sure that all the documents that are needed. I'll make a separate video on this for all the documents that are needed for your ID examination and this. Keep those with you at a separate place just a day before the exam. So yeah, keep those things with you, and yeah, sleep on time so that exam center जाने के बाद you are not facing any such kind of problems, any health issues or nothing. So take care of your health and study properly and try to follow whatever I said. I am sure that will help you. And thank you for watching my video. I am here to solve all of your doubts. So I'll make another post on, if you have any questions, you can ask me there. It will just be a Q&A post, and after that I'll make a separate video so that you get all of your answers, and I'll try to answer all of the questions that you asked. And yeah, thanks for trusting me. Thanks for subscribing. Best of luck to all of you.